Assalamu alaikum ji. I know some of you in this pandemic under lockdowns want to start reading. आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, toying with the idea कि हमें किताबें पढ़ना शुरू कर देनी चाहिए. If you're one of those people, this video is for you. But what I'm here to discuss today is a traditional view of reading before this tech obsession that we've developed. Now, reading in itself as an activity is a mixture of smaller activities. Reading is not just about gathering information. वो तो आपको Google की search से भी मिल जाएगी या आपको XYZ app से मिल जाएगी. Reading is more than that. It develops your focus. It helps you understand कि आर्ग्यूमेंट्स किस तरह बनाई जाती हैं, आर्ग्यूमेंट्स को किस तरीके से इस्टेब्लिश किया जाता है, आर्ग्यूमेंट्स को किस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया जाता है. आपके दिमाग को लैंग्वेज प्रोसेस करने में और लैंग्वेज खूबसूरती से प्रेजेंट करने का स्किल रीडिंग सिखाती है. एंड द रीडिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट टुडे इज़ व्हाट वी कॉल रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग. रीडिंग नॉट जस्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन बट ऑल्सो रीडिंग टू फिगर आउट कि अच्छा ये बात जो है ये क्यों इस वक्त हो रही है, ऑथर का इससे क्या मतलब है, ऑथर ये बात क्यों कर रहा है और इससे मेरी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ता है. सो देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आई हैव लर्नड इन माय जर्नी ऑफ रीडिंग दैट आई जस्ट वांट टू पुट आउट देयर एंड आई होप दैट दे हेल्प यू. नंबर 1, अगर आपने फ़ौरन ये समझना है कि मुझे ये किताब लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, इस पे वक्त लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, एंड यू हैव लिमिटेड टाइम टू मेक दैट डिसीजन, तो देन यू डू सिस्टेमिक स्किमिंग. सिस्टेमिक स्किमिंग इज़ बेसिकली अ 4 or 5 स्टेप प्रोसेस जो आपको छोटे से अरसे में किताब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है. हाउ डू यू डू इट? वेल, यू स्टार्ट ऑफ विद द टाइटल. यू रीड द किताब का टाइटल, यू से ओके डी एस्केलेट हाउ टू काम एन एंग्री पर्सन इन 90 seconds और लेस. टाइटल ने मुझे बता दिया कि ये इज़ अबाउट मैनेजिंग एंग्री पीपल एंड इट्स अबाउट डी एस्केलेशन. टाइटल करने के बाद second thing that I need to do is that I need to go into the table of contents. Table of contents से I need to go through actively assessing and understanding what it says to figure out कि किताब का structure क्या है. ये कहते हैं these secret revealed, affect labeling in action, after restoring the calm, then what? Minimum coercion, maximum listening. Okay, the art of core messaging is another chapter. Peacemaking in relationships, so it talks about relationships. Be an affect label leader. अब affect label का इन्होंने दूसरी दफ़ा जिक्र किया है. Perhaps I need to understand कि ये affect labeling क्या होती है. The power of self-awareness, so the book also is talking about self-awareness. A master skill for teachers is chapter number 9. So if you're a trainer or a teacher, maybe that will pique your interest and you'd want to find out what this is. And last chapter, how to be civil in an uncivil society. तो अगर आपको भी यही लगता है कि लोग मेरे इर्द गिर्द पागल हुए हैं, मैं कैसे सिविल रहूँ, तो perhaps this is something that will resonate with you. What this does is it gives you an overview of कौन सी arguments इसमें author जो हैं वो बनाना चाह रहे हैं. Once you've read the table of contents, then you run to the back and figure out कि अच्छा इस किताब के अंदर index कहीं है mentioned या नहीं है. So in this particular case हमारे पास index नहीं है. I think we have in this one. तो index में मुख्तलिफ topics, मुख्तलिफ चीज़ें जो रेफ़र की गई हैं उनका नाम आता है. मिसाल के तौर पे इधर index में मुझे पता चल रहा है जी advertising, age restrictions, association and advertising, Milgram study. I know about this study, I've heard about it, so I can make that connection. Automobile sales, advertising and automobile sales, authority in automobile sales. So there's a chunk on automobile sales. Maybe that's something that I'm interested in. So you get the idea. So you go through the index, you look at the topics that are mentioned in the book, you look at कि कितने pages तक वो topic mention किए गए हैं to understand कि कितना in depth है या नहीं है, and get an idea of what kind of topics is this book gonna cover. Or is there gonna be a lot of studies? Is there gonna be a lot of theoretical talk? What is it about? And then lastly, you come to the last page in both these cases जिसमें एक blurb लिखा होता है about what this book is about, which gives you another view of कि अच्छा इस किताब में summary क्या है, किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, मुद्दा क्या है. Once you've done these steps, you probably now have a better view of the book than you did starting off. This is the process of systemic skimming. In the least possible time, it gives you the most possible information. Now we move to number 2. Number 2, the problem that we have is that people recommend books to us. लोग मुझे कहते हैं कि यार आसिफ आप ना 7 हैबिट्स पढ़ें, आपने 7 हैबिट्स पढ़ी है. या लोग मुझे कहते हैं कि आप फाउंटेन हेड पढ़ें, आपने फाउंटेन हेड पढ़ी है. सो वट एवर रिकमेंडेशन वी गेट, और लोग बड़ा हाईली रिकमेंड करते हैं किसी किताब को, हम वो किताब ले भी आते हैं बट वी एंड अप स्ट्रगलिंग विद इट. हम शुरू कर देते हैं लेकिन हमसे ख़त्म नहीं की जाती किताब.
That is where skill number 2 comes in, and that is called superficial reading. ना सुपरफिशियल एक लफ्ज़ नेगेटिव कॉनोटेशन है, लेकिन इस वक्त हमारा इस लफ्ज़ से कोई नेगेटिव मायने नहीं है. सुपरफिशियल रीडिंग इज़ एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, इट्स एसेंशियल एंड इट हैज़ इमेंस बेनिफिट्स. सुपरफिशियल रीडिंग ये कहती है कि भाई स्टार्ट एट द स्टार्ट, एंड एट द एंड, डू नॉट स्टॉप इन द मिडल. अगर आपको बीच में एक पैराग्राफ समझ में नहीं आया है, डोंट गो बैक एंड री रीड इट. अगर आपने बीच में एक चैप्टर पढ़ लिया और आप जोन आउट कर गए थे और आपको समझ ही नहीं पड़ी है कि क्या हो रहा है, डोंट स्टॉप, डोंट गो बैक एंड री रीड इट, जस्ट कंटिन्यू. द आइडिया हियर इज़ कि जब आपको आगे की इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो पीछे के गैप्स खुद ब खुद फिल हो जाएंगे. सो 70%, 80% गैप्स बाय द एंड ऑफ द बुक आर गोना बी फिल्ड. एंड इफ़ देयर इज़ स्टिल स्टफ जो नहीं हमें समझ में आया, after we've read the entire book, we can go back and try and figure out what it was. This personally works wonders for me. बगैर रुके just दौड़ जाएं, gives you good context in one reading and is a good experience as well. Idea number 3. Idea number 3 ये कहता है कि भाई make the book your own. तो आप जब कोई भी किताब लें तो कोशिश ये करें कि उसको अपना बनाएं, और किताब को अपना बनाया जाता है by making notes on it. So make notes on it. There's different ways that you can annotate things on a book. Number 1, आप underline कर सकते हो important sentences या important terms को. Number 2, अगर एक paragraph important है तो आप vertical line उसके side पे लगा सकते हो to highlight कि ये पूरे paragraph में important बात की गई है. Number 3, इंपॉर्टेंट वर्ड्स या टर्म्स जहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं किताब के अंदर, उधर आप एक एस्टेरिक लगा सकते हो. ना अंडरस्टैंड कि इंपॉर्टेंट वर्ड या टर्म जो है वो एक पूरी किताब में 12 से 15 होने चाहिए. ऐसा नहीं कि आप हर सफ़े पे 6 एस्टेरिक्स लगा रहे हो. सो यू गॉट टू रियली चूज़ कि मैं कहाँ एस्टेरिक लगा रहा हूँ और मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ. द फोर्थ थिंग दैट यू कैन डू विच रियली रियली हेल्प्स मी इज़ कि जब आप सुपरफिशियल रीडिंग कर लो, जब आपने किताब को एक दफ़ा पढ़ लिया है, तो यू गो बैक एंड यू डू अ चैप्टर बाय चैप्टर स्किम थ्रू. एंड एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर जो खाली जगह होती है, चैप्टर के एंड में छोटा सा एक कागज़ रह जाता है, या चैप्टर के बिगिनिंग में ऊपर 20% जगह खाली होती है, उसमें आप एक समरी लिख दो ऑफ व्हाट दिस चैप्टर इज़ अबाउट इन योर ओन वर्ड्स. तो हर चैप्टर के शुरू में जो खाली जगह होती है छोटी सी, उधर एक 2-3 लाइनों की समरी, या जो एंड में जगह होती है उधर 2-3 लाइनों की समरी. एंड वंस यू गॉन थ्रू ऑल द चैप्टर्स, तो किताब के शुरू में जो खाली पेजेस होते हैं 1-2, या एंड में जो खाली जगह होती है कवर के साथ, उधर पूरी किताब की समरी अपने अल्फाज में दर्ज करें. दिस हैज़ इमेंस वैल्यू, क्योंकि जब आप अपने अल्फाज में कोई बात करते हो तो वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आती है. सो मेक द बुक योर ओन. नंबर 4 एंड मोस्ट चैलेंजिंग, अगर किताब का कंटेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आप मोटिवेटेड हो अपनी अंडरस्टैंडिंग को एलिवेट करने के लिए, तो देन यू गो इनटू एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द बुक इज़ ट्राइंग टू से. What that requires you to do is to figure out कि पूरी किताब में ऑथर ने कहाँ कहाँ जजमेंट पास किया, कहाँ कहाँ ऑथर कह रहा है कि आपको ये काम करना चाहिए या ये चीज़ एक अच्छी चीज़ है, और आप उसकी जजमेंट्स को अंडरलाइन करके एक जगह इकट्ठा कर लेते हो. वंस यू हैव दोज जजमेंट्स, देन यू गो बैक टू द बुक एंड यू फिगर आउट कि इस जजमेंट तक पहुंचने के लिए ऑथर ने क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दी हैं, एंड यू हाईलाइट दोज आर्ग्यूमेंट्स. कि अच्छा, अगर मुझे ऑथर कह रहा है कि मैंने सुबह 4 बजे उठना है, तो what are his arguments or her arguments for that judgment? By bringing all of those arguments and the judgments together, you understand कि author कोई भी बात जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं. And if you do this process right, then what you've done is you've elevated yourself to the understanding of the author. You get to a level where you can now intelligently talk about the subject matter. These are some of the things that help me in my journey of reading. I hope that this video motivates you a little bit to get into and tip your toes into the vast ocean of books and readings out there. All the best, and I'll see you again.